Hey, hello friends, welcome back to my YouTube channel. So today I am going to solve the lead code problem number 1458. Okay, so let's read the problem. Problem is max dot product of two subsequences. Okay, means we have to find the product of two subsequences. Okay, let's read the problem statement. Given two arrays nums1 and nums2, okay, return the maximum dot product. We have to return the maximum dot product between non-empty subsequences of nums1 and nums2 with the same length. Okay, with the same length. A subsequences of array is an array which is formed from the original array by deleting some characters without disturbing relative position of remaining characters. Okay, so this is the definition of subsequence of a array. Okay, तो आपको क्या करना है, you have to return the dot product. Okay, and which must be maximum dot product between of two non-empty subsequences. Okay, let's understand using the simple test case. Okay, so this is the test case, and let's understand using this test case that how we approach the problem. Okay, so this is the input. Okay, so in this input we have to firstly take the subsequence from the nums1 and nums2. So if I take the subsequence from the nums1 2 comma 1. Okay, if I take the subsequence from the nums1 is 2 comma 1 and from the nums2 is 3 comma 0. Okay, and take the dot product is like first index to the zeroth index to the zeroth index element and first index to the first index element multiply करना है. Okay, so after multiplying 2 into 3 and add 1 into 0, so it will become 2 into 3 is 6 and 1 plus 1 into 0 is 0, so this is 6. Okay, if I take the subsequence 2 comma minus 2 from nums1 and 3 comma minus 6 from nums2, okay, so it will become 4 plus how much, minus 12. Okay, yeah, this is not 4, this is 6. Wait, this is not 4, this is 6. Okay, so it will become, ये हमारा प्लस ही होगा भाई, this is plus. Okay, not minus. Okay, so after adding these two it will become 18. Okay, and if you try to take another subsequence, this is not it will not give the maximum maximum sum. So this is the maximum. So okay, from which we get from the 2 comma minus 2 subsequence and 3 comma minus 6 subsequence from the respective array. Okay, so this is the maximum subsequence, which is maximum sum, which is 18. Okay, so let's move the solution. Okay, how we move to the solution, how we think to think that how to solve this problem. Okay, so let's build the solutions firstly. Okay, so what is subsequence? Like we have to take the elements from the arrays without disturbing the relative position of the elements. Okay, so we can take that element in the new array or we not. Okay, so if I take let look here, if I take the element 2 comma minus 1 from the nums1 sub, ये nums1 है. Okay, and this is nums2. Okay, if I take the value 2 comma minus 1, okay, this is the subsequence. Okay, subsequence which I got. Okay, I can take 2 comma minus 2 or 2 comma 5. Okay, so this is the length of 2. Okay, if I take the 2 comma minus 2, okay, or 2 comma minus 2 comma 5, 2 comma 1 comma 5, so this is the subsequence. Okay, of different length. Okay, this is a 2 length subsequence, this is 3 length subsequence, or either we can take 4 length. Okay, 4 length means subsequence of whole array. Okay, okay, and in nums2 I can take 3 comma 0 of 2 length. Okay, or 3 comma minus 6. Okay,
or either I can take 3 comma 0 comma minus 6. Okay, so this is the subsequence. These are the subsequence which I can make from the respective array. Okay, this is 2 comma minus 2 of length 3, 2 comma minus 2 of 5, 2 comma 1 comma 5. So here one thing is important, you don't have to change the relative position of the elements. Like if in this, like this, in this example I take 2 comma minus 2 comma 1 comma minus 2 subsequence. Okay, I didn't change the relative position. like 1 आपको -2 से पहले नहीं रखना है भाई. 1 क्या है, 1 -2 के पहले, ये सॉरी, जो 1 है वो आपको -2 के बाद में नहीं रखना है. 1 जो है -2 के पहले ही आना चाहिए. लाइक वाइज इन द ओरिजिनल एरे जैसे में आया है. ओके, यू डोंट हैव टू चेंज द relative position. Okay, so this is that is how we find the subsequence. Okay, so main thing is in the subsequence is you have to check for the options. like try कर रहे हो आप, like 2 comma 1 को लिया, then 2 comma minus 2 को लिया, then 2 comma 5 को लिया, then you can take 2 comma 1 comma minus 2, then you can take 2 comma 1 comma 5. so there is the options to take the elements from the array. Okay, so it will remind you like for DP or recursion. Okay, मीन्स आपके माइंड में आना चाहिए, हाँ यहाँ पर यार रिकर्जन लग सकता है, यहाँ पर DP लग सकता है भाई, क्योंकि ये भाई बार बार क्या कर रहा है, ऑप्शंस बना रहा है. मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि अच्छा हाँ कुछ ये भी हो सकता है या फिर ये हो सकता है. मतलब ऑप्शंस हैं, लाइक हम इसके साथ इसको ट्राई कर रहे हैं. मीन्स वी हैव टू चेक ऑल द पॉसिबिलिटी. सो वी हैव टू ट्राई टू थिंक अबाउट द ट्री डायग्राम टू मेक फॉर दिस. ओके, सो लेट्स मूव टू द मेकिंग ऑफ ट्री डायग्राम. हम लोग ट्री डायग्राम बना के देखते हैं कि हाउ वी कैन अप्रोच दिस सोल्यूशन. ओके, कैसे हम सोल्यूशन को अप्रोच कर सकते हैं. तो एक बार ट्री डायग्राम बना के देखते हैं. लाइक हमने यहाँ से एक एलिमेंट ले लिया, इसका एक एलिमेंट ले लिया, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया. तो ऐसा करके देखते हैं कुछ. ठीक है, तो सबसे पहले DP आना चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि यहाँ पर भाई सब्सिक्वेंस है. सब्सिक्वेंस मतलब आपको ऑप्शंस ट्राई करने पड़ेंगे. ओके, सो यू हैव टू मेक द ट्री डायग्राम फर्स्ट. ओके, तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है. सबसे पहले जब आपने देखा कि ये सब्सिक्वेंस का प्रॉब्लम है, इफ़ यू आपने देखा सब्सिक्वेंस है, अरे मतलब ऑप्शंस है. ओके, यहाँ पर ऑप्शंस होना चाहिए. वेट अ मिनट, ऑप्शंस. ओके ओके, ऑप्शंस होना चाहिए. फिर उसके बाद में मैंने DP देखा. ओके, मैंने सोचा अच्छा हाँ DP. फिर मुझे याद आया, अच्छा भाई ट्री डायग्राम को बनाओ और वहाँ से सॉल्यूशन के लिए एनालाइज करो. ओके, सबसे पहले मैं ट्री डायग्राम बनाती हूँ. मैंने यहाँ पर कुछ थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना लिया, सो दैट टाइम ना वेस्ट हो आप लोगों का. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक I डिफाइन कर लिया. एक I मेरा पॉइंटर यहाँ पे होगा, J मेरा यहाँ पे होगा फॉर nums 2. ओके, nums 1 के लिए I, nums 2 के लिए J. ओके, सो इफ़ आई टेक first element from there and second element from there, like 2 comma minus 2 comma 3. if I take 2 comma 3 from the respective array, एक मिनट इसका पैन चेंज कर लूँ. ओके, like if I take 2 comma 3. okay, 2 comma 3. okay, so what is the product of 2 dot product of 2 comma 3 is 6. okay, this is the 6. so this is the one approach which I take, which this is the one option. like I can take both the elements from the array. बस मतलब इसके आगे मुझे और कुछ नहीं करना. बस मैंने क्या किया, बस मैंने जो 2 एलिमेंट्स थे, जो जहाँ पर मेरा पॉइंटर था वहीं से मैंने दोनों एलिमेंट्स ले लिए, उनको प्रोडक्ट कर दिया. बस यही रिटर्न कर दिया मैंने. फिर एक सोल्यूशन मेरा क्या हो सकता है कि मैं दोनों एलिमेंट को ले लूँ. क्या करूँ, मैं दोनों एलिमेंट को ले लूँ, जो तो मैंने ले लिया है. ठीक है, ith और jth पे जो मेरे एलिमेंट हैं उनको मैंने ले लिया, उनका मैंने डॉट प्रोडक्ट भी निकाल लिया. लेकिन अब मेरा मन हो रहा है मुझे सम को मैक्सिमाइज करना. वी हैव टू मैक्सिमाइज द सम, सो वी हैव टू मूव फर्दर फॉर फाइंडिंग द एंड मोर एलिमेंट्स. ओके, सो हम क्या करेंगे, फर्दर जाने के लिए हम क्या कर देंगे, फर्दर जाने के लिए हम जो सॉल्व मेरा जो भी फंक्शन होगा, तो मैं रिकर्जन से बोल दूंगा भाई आगे जाके तुम और निकाल के ले आओ.
तो मैं क्या कर दूँगी, i प्लस वन कॉमा j, एक मिनट भाई, ओ माय गॉड, j प्लस वन। ओके, सो मैं यहाँ पर ये कर सकती हूँ। लेकिन क्या हुआ, अगर मैंने क्या किया, मैंने ये लिया और ना ही मैंने ये ले लिया, मैंने 2 को ले लिया, मैंने कहा 3 को मैं नहीं लूँगी। मैंने जो jth पॉइंटर पे है ना एलिमेंट, मैं उसको नहीं लूँगी। मेरा मूड स्विंग हो गई, तो मैंने कहा नहीं भाई मैं इसको नहीं लूँगी, मैं j प्लस वन को जाऊँगी, मैं j प्लस वन पे जाऊँगी। तो मैं यहाँ पे सॉल्व फंक्शन पास कर दूँगी। लाइक मैंने कहा भाई मैंने सिर्फ आयत वाला एलिमेंट लिया है, आई टेक द ओनली आयत एलिमेंट, बट मुझे भाई jth नहीं चाहिए, मुझे jth प्लस वन चाहिए, क्योंकि मुझे सारी पॉसिबिलिटी भाई देखनी है ना। क्योंकि यहाँ पे मैंने j प्लस वन आई प्लस वन ले ही लिया और आगे फर्दर प्रोसेस कर ही दिया, तो मुझे और पॉसिबिलिटी भाई देखनी है, मैं एक ही पे नहीं रुकूँगी। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, मैं j प्लस वन, एक मेरे मन में क्या हुआ, मैं भाई आई को नहीं लूँगी, मैं आई प्लस वन को लूँगी और जे को मैं ले लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, आई प्लस वन, और मैंने क्या किया, मैंने जे को ले लिया। ठीक है, जो जे एलिमेंट पे जो था वैल्यू, जे इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो मैंने ले ली। ठीक है, बट मैंने आगे फर्दर प्रोसेस कर दिया। ठीक है, सेम फॉर हेयर एंड सेम फॉर हेयर। ओके, सो मैं यहाँ पर इस वाली ऑप्शन को मैं आगे आपको आइटरेट करके दिखाती हूँ। ठीक है, आएंगे इस वाले को, तो यहाँ से मैंने 2,3 लिया और सॉल्व को पास कर दिया आई प्लस वन। फर्दर निकालने के लिए मैंने आई प्लस वन एंड जे प्लस वन कर दिया। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, 6 ले लिया और प्लस कर दिया क्या, मतलब सॉल्व। ओके, सॉल्व मैंने क्या पास किया, सॉल्व में मैंने पास किया आई प्लस वन एंड जे प्लस वन। जे प्लस वन, तो यहाँ पर मेरा क्या एरे बन जाएगा, मैंने 6 प्लस सॉल्व आई प्लस वन जे प्लस वन, तो मेरा एरे क्या बन जाएगा, मेरा एरे कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। मेरी जो वैल्यू होगी इसमें 2, -2 एंड यहाँ पर होगा मेरा 3, -6। ओके, एक मिनट। तो अब मेरा आयत पॉइंटर यहाँ पर होगा, कुछ आयत पॉइंटर मेरा होगा यहाँ पर एंड जेथ मेरा होगा यहाँ पर। ठीक है, और मैंने क्या किया, वही मेरा जो चारों ऑप्शन है जो मैंने पहले ट्राई किए थे वही मैं फिर से ट्राई करती हूँ। ठीक है, बट इस बारी मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है, मेरा पहले मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ जो दोनों जहाँ पर मेरा आए तो जे थे ना पॉइंटर, उन दोनों एलिमेंट को मैंने ले लिया। लाइक -2 ले लिया मैंने एंड -2 का मैंने डॉट निकालिया और -6 का जो आया वो मैंने स्टोर कर लिया, लाइक -12। ओके, -12 आया ना, -12, और फिर मैंने यहाँ पर फर्दर पास कर दिया। मैंने क्या किया, मतलब फर्दर क्या, मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर -12 नहीं आएगा, सॉरी 12 आएगा। ओके, मैंने क्या ले लिया, मैंने -2 और -6 को मैंने ले लिया और फर्दर मैंने कॉल कर दिया। मैंने दोनों को ले लिया, दोनों एलिमेंट को, और फर्दर भी मैंने कॉल कर दिए। ठीक है, रिकर्जन को, तो मेरा आई प्लस वन, ओके, एंड जे प्लस वन, और यहाँ पर ये प्लस होगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने आगे पास कर दिया, और सेम फॉर इधर भी जो दो ऑप्शन थे वो ट्राई कर लेना। सॉल्व यहाँ पे क्या होगा, आई कॉमा जे प्लस वन, आई कॉमा जे प्लस वन के लिए जाएंगे यहाँ पर हम, और यहाँ पर ऊपर के लिए आई प्लस वन एंड जे। ओके,
तो ये दोनों हो गए अदर साइड। मैं इसको आगे मूव करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर 12 हुआ और प्लस सॉल्व i + 1 j + 1। अब देखो मेरा ith वैल्यू यहाँ पर, ऐसा आया था पॉइंटर यहाँ पर, jth पॉइंटर यहाँ पे। अब जो आगे ये बढ़ेंगे तो आउट ऑफ बाउंड जाएंगे। नाउ i + i, j। अब जब ये आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ बाउंड, आउट ऑफ बाउंड। तो हम क्या करेंगे, अब जब आउट ऑफ बाउंड होगा मतलब हमारी बेस केस आ गया, ठीक है। तो अब जब हमारा आउट ऑफ बाउंड होगा तब मेन चीज़ मेरी ये कि मैं रिटर्न क्या करूँगा ऊपर मैं रिटर्न क्या करूँगी भाई। यहाँ से तो मेरा 12 हो जाएगा रिटर्न होके, बट यहाँ से मेरा क्या जाएगा रिटर्न होके, यहाँ से मैं ऊपर क्या रिटर्न करूँगी, 12 + समथिंग क्या मुझे रिटर्न करना है, क्या मैं ऊपर रिटर्न करूँगी। तो मेन चीज़ यहाँ पर एक चीज़ ये देखिए आप, लाइक यहाँ पर 2 और 3, 2, 3, 6 मैंने रिटर्न कर रही हूँ, ठीक है ऊपर, क्योंकि इसके आगे कुछ मुझे करना नहीं है, ठीक है। सेम i + 1 यहाँ पे 2 + 3 + सॉल्व जो ऊपर यहाँ से नीचे से आएगा ना, इस वाले श्रेणी से आएगा, मतलब इस वाले लेवल से जो मेरा आएगा, इस वाले जो लेवल से जो मैक्स आएगा वो मेरा इस वाले कॉम्बिनेशन में ऊपर जाएगा, ठीक है। 6 + समथिंग जो भी आएगा वो ऊपर जाएगा मेरा, ठीक है। लेकिन मुझे जब मेरा बेस के जाएगा तो मैं रिटर्न क्या करूँगी, मेन चीज़ ये है ना। तो मुझे मैक्सिमाइज़ करना है ना, मैक्सिमाइज़ करना है और मुझे 12 + समथिंग ऐड करना है, ठीक है। तो मैं लाइक यहाँ पर सपोज़ यहाँ पर अगर मेरा 12 ना होके, सपोज़ 12 ना होके -1 होती कोई वैल्यू, ठीक है। और अगर मैंने सोचा मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूँ 0, अगर मैंने 0 रिटर्न कर दिया तो 12 + 0 = 12, लाइक सॉरी यहाँ पर भी -1 होता, ठीक है। कुछ भी होता है, लाइक सपोज कुछ भी होता, बट अगर यहाँ पर -1 होता और यहाँ पर मेरा 0 आता तो वो 0 को मैक्सिमम ले लेता, -1 को नहीं लेता। बट यहाँ पर 0 तो है नहीं क्योंकि मैं रिटर्न 0 कर रही हूँ ना। मैं रिटर्न यहाँ से क्या कर रहे हैं, जैसे इस वाले केस में थे ना, अगर मैंने यहाँ पर अगर इसको मैंने -1 मान लिया, ठीक है, इस वाले ब्रांच को मैंने -1 यहाँ से मैं रिटर्न 0 कर रही हूँ तो वो मैक्सिमम 0 मान लेता, बट 0 मैक्सिमम नहीं होता, मेरा मैक्सिमम यहाँ पर -1 होता। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक ऐसी मिनिमम वैल्यू रिटर्न करनी है, मिनिमम वैल्यू लाइक -∞ मैं रिटर्न कर सकती हूँ मिनिमम वैल्यू, सो दैट जो मेरे इससे भी बड़े जो निगेटिव वैल्यूज़ हो उनको मौका मिल पाए, वो मैक्सिमम वो मतलब काउंट हो सकते हैं, ठीक है, वरना वो काउंट नहीं हो पाएंगे। सो हमें क्या रिटर्न करना है, यहाँ पे -∞ ऊपर रिटर्न करते जाना है, ठीक है। तो बस यहाँ पर 12 + समथिंग ऐड करेंगे तो जो भी मेरा मैक्स आएगा वो ऊपर जाएगा। यहाँ से इस वाले ब्रांच से जो मैक्स, इन चारों ब्रांच से जो मुझे मैक्स मिलेगा वो मैं ऊपर भेज दूँगी इस वाले सॉल्व के पास। फिर इस +6 + सॉल्व से जो भी मेरा निकलेगा वो मैं यहाँ पर भेज दूँगी। फिर इन चारों से जो मैक्सिमम आएगा वो मैं आंसर में रिटर्न कर दूँगी। ओके, सो दिस इज़ हाउ दिस ट्री डायग्राम वर्क्स। ओके, सो बहुत ही ईजी ट्री डायग्राम है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक सॉल्व फंक्शन बना लेना है। क्या करना है, एक मुझे सॉल्व फंक्शन बना लेना है। ओके, सॉल्व फंक्शन बना लेना है, उसमें 0,0 क्या मुझे इंडेक्स पास कर देनी है i,0, ठीक है। और मुझे क्या कर देना है, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे सॉल्व फंक्शन कैसे लिखना है, सॉल्व i पास कर लेंगे, j पास कर लेंगे, ठीक है। और उसको मैं आगे बढ़ाते रहेंगे, देखो कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मैं ठीक है। तो मेन हमारा क्या था, मेन हमारा बेस केस था ना। तो बेस केस मैंने क्या बताया था, बेस केस बताया था अगर जब i = m हो जाए फर्स्ट वाले एरे की लेंथ, ठीक है, इक्वल के हो जाए, या फिर j = n हो जाए, ठीक है। इन दोनों केसेस में हमें क्या रिटर्न कर देना है, रिटर्न मिन वैल्यू रिटर्न करने देनी है, ठीक है। जो भी हमारी मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, जो या तो टेक बोथ क्या लेना है, टेक बोथ एलिमेंट, हमें क्या लेना है, टेक बोथ एलिमेंट एंड मेक प्रोडक्ट। ओके, नहीं तो क्या करना है, अगर मैंने ये दोनों नहीं लिए तो वही अगर मैंने ये दोनों ले लिए और मैं आगे जाना चाहती हूँ, ठीक है, तो टेक बोथ एंड मूव फर्दर, या फिर दूसरे केस क्या होता है, कहते हैं मैं टेक ith एलिमेंट एंड फॉर jth के लिए फर्दर, या तो मैं क्या करूँ, टेक
टेक jth एलिमेंट एंड क्या करना है, हमें ith के लिए फर्दर देखना है, और इन दोनों से इन चारों पॉसिबिलिटी से जो भी मैक्स आए वो रिटर्न कर देना है। रिटर्न मैक्स, क्या रिटर्न करना है, मैक्स फ्रॉम ऑल एबव जितनी भी फ्रॉम ऑल एबव ऑप्शंस। ओके, इससे रिटर्न कर देना है। और हमें एक डीपी बना लेना है। डीपी अरे किस लिए बनाना है हमको, एक मिनट, एक डीपी अरे बना लेना है। क्यों बनाना है, मेमोराइज करने के लिए। भाई मेमोराइजेशन तो ही करना है ना, वरना वो मार जाएगा, हमारा टीएलई मार जाएगा। ठीक है, तो मेमोराइजेशन के लिए क्या, दो वैल्यू चेंज हो रही है, आई चेंज हो रहा है और हमारा क्या चेंज हो रहा है, जे चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, आई और जे चेंज हो रहा है तो हम एक 2D अरे बना लेंगे, 2D अरे। ठीक है, 2D अरे बना लेंगे और उसमें स्टोर करते जाएंगे, ठीक है, आंसर्स को। तो बस इतना ही है, मैं कोड पे मूव करती हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं कोड पे मूव करती हूँ। ठीक है, एक मिनट, ये काफ़ी, इसका फॉन्ट बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा करो भाई। एक मिनट, इतना बड़ा कैसे हो गया इसका फॉन्ट, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं कोडिंग पार्ट पे मूव करती हूँ। ठीक है, आपको कोड करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक इंट एम और एम ग्लोबली डिफाइन कर लेना है। ठीक है, और एक 2D वेक्टर ले लेना है, किसके लिए, डीपी मेमोराइजेशन के लिए। ठीक है, और फिर हमको क्या करना है, और एम को स्टोर कर लाना है nums1 डॉट लेंथ और एन के लिए nums2 डॉट लेंथ। ठीक है, और डीपी अरे के लिए मुझे क्या कर लेना, टी इक्वल्स टू न्यू इंट एम एन और स्टोर कर लेना है इसमें -1 इंट आर टी। ओके, एंड अरेज डॉट फिल आर -1। ओके, और यहाँ पर रिटर्न कर देना है हमारा सॉल्व फंक्शन जो हम बनाएंगे उसमें nums1 nums2 आई जे। ओके, बस, और यहाँ पर मुझे क्या करना है, सॉल्व फंक्शन को बना देना है। ठीक है, पब्लिक इंट सॉल्व इंट nums1 इंट nums2 इंट आई इंट जे। ओके, एंड यहाँ पे बेस कंडीशन हमारी क्या होगी, हमारी इफ़ आई इक्वल्स टू एम और जे इक्वल्स टू एन, रिटर्न कर देना है हमें मिनिमम वैल्यू। ओके, इन्फिनिटी रिटर्न कर देंगे, मिनिमम वैल्यू -e9 रिटर्न कर देते हैं। ओके, ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं हो तो हम क्या करेंगे, इंट पहला मेरा होगा टेक बोथ। ठीक है, टेक बोथ में हमारा क्या होगा, nums1 ऑफ आई इंटू डॉट प्रोडक्ट लेंगे nums2 ऑफ जे। ठीक है, जो भी है हमारा, ठीक है, जो भी हमारी दो वैल्यूज़ है उन दोनों का प्रोडक्ट ले लेना डायरेक्ट बस। लेकिन अगर हमने टेक बोथ भी लिया और फर्दर भी मूव गए, ठीक है, फर्दर चेक। ओके, चेक फर्दर, तो हम क्या लें, ये हमें ले लेने हैं दोनों nums1, ये तो दोनों लेने ही है। ठीक है, और हमें फर्दर भी चेक करना है, तो उसके लिए प्लस सॉल्व nums1 nums2 आई +1 जे +1। ठीक है, लेकिन अगर हमने क्या किया, फर्दर तो हम गए थे और हमने क्या किया, अगर हमने सिर्फ आई को लिया, इंट टेक आई ith और jth के लिए फर्दर jth के लिए हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करने हैं, सॉल्व nums1 nums2 आई जे +1, और सेम दूसरी के लिए हम क्या करेंगे, इंट टेक jth। ओके, एंड फर्दर के लिए हम ith जाएंगे। ठीक है, ith एलिमेंट के लिए हम क्या करें, ith इंडेक्स के लिए हम फर्दर जाएंगे। ठीक है, सॉल्व nums1 nums2 एंड आई +1 जे।
ठीक है। और रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न मैथ डॉट मैक्स ऑफ टेक बोथ, ठीक है। इन सब का मैक्सिमम निकाल लेंगे, टेक बोथ कॉमा मैथ डॉट मैक्स ऑफ, ये ले लिया, ठीक है, बोथ का ले लिया, फर्दर चेक, फिर ले लिया मैथ डॉट, फिर से लगाएंगे मैथ डॉट मैक्स, और फिर हम इसका ले लेंगे। या तो सिर्फ मैंने आई ले लिया, जेथ को आगे बढ़ाया, या फिर मैंने जेथ को ले लिया और आई को मैंने आगे बढ़ाया, ठीक है। बस इतना ही करना था। और मेमोराइज अभी कर लेंगे, पहले टेस्ट केस पास करके देखते हैं, ठीक है, टेस्ट केस पास होते कि नहीं। ओके, चलिए देखते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं है, कोई एरर वगैरह। जल्दी चल जाओ भाई, क्या हुआ? ये काफ़ी स्लो चल रहा है मेरा इंटरनेट, क्या हो गया भाई? आधा टाइम मेरा यही निकाल लेगा भाई, जल्दी चलो। एक मिनट, कहाँ गलती है? वेरिएबल आई, एक मिनट, नहीं नम्स 1 मैंने कहाँ पे गलती की है? लाइन नंबर 27, लाइन नंबर 27 इधर 0 होगा, ठीक है, 0 पास करना है भाई। नम्स 1 यहाँ पर नम्स 2 पास करना है, ठीक है। वेरिएबल आई, वेरिएबल जे, और कोई नहीं, एरर रन हो गया। और कोई, हाँ रन हो गया टेस्ट केस, ठीक है। अब इसको मेमोराइज कर लेते हैं ताकि ये टी मार जाएगा हमारा, ठीक है। तो इफ़ हमें चेक करना है टी ऑफ आई टी ऑफ जे अगर -1 नहीं है तो रिटर्न कर देना है सिंस टी ऑफ आई टी ऑफ जे सिंपली, ठीक है। और यहाँ पे स्टोर भी करा लेना है वैल्यू को, आंसर को, जो भी हमारा मैक्स आएगा उसको स्टोर करा लेना है, ठीक है। रन करते हैं। ओके, टेस्ट केस हमारे पास हो गए, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं, लेट्स सी। ओके, सबमिट करते हैं। सबमिट हो जाना चाहिए, काफ़ी टाइम ले रहा सबमिट होने में। ओके, सबमिट हो जाओ भाई, इतना क्यों टाइम ले रहे हो? टाइम नहीं है भाई, नेट बहुत स्लो चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। सबमिट हो गया, ठीक है। ओके, सो टेस्ट केस इज सबमिटेड। वही मैं सोचूं, मेरा डेली का वो क्यों नहीं आया, कॉइन क्यों नहीं घूमा मेरा। चलिए ठीक है, तो ये सबमिट हो गए हैं टेस्ट केसेस। तो आप लोगों को भी क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन काफ़ी इजी था, मतलब बस थोड़ा डीपी का थोड़ा सोचना था और कुछ नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।